Hello everyone, this is Parul Goel from Infinity Vision. I guess you all know that we have started a series from NCERT Exemplar Biology in the last video only, and उस video में हमने topic 1 reproduction in organisms से first objective questions को discuss किया था. Right, and we all know that the book contains objective questions, very short type questions and long type questions. Right, I have already told you कि हम इस topic को 3 या 4 videos में cover करेंगे. तो last video हमने cover किया था objective type questions का, और आज इस वीडियो में we'll cover the very short answer type questions. ठीक है, तो हम but before that, before starting the very short questions, I have given you a question that is from quiz time. ठीक है, तो उसी क्वेश्चन का मैंने आपको लास्ट में बोला था लास्ट वीडियो में कि दैट आप उसका आंसर हमें चैट बॉक्स में भेजिएगा. जो आप लोगों ने भेजा, बहुत लोगों ने बिल्कुल सही आंसर भेजा मुझे, तो उसी का आंसर डिस्कस कर लेते हैं पहले. उसके बाद वी आर गोइंग टू बिगिन विद वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप फ्रॉम टॉपिक 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बायोलॉजी. ठीक है, so the question says, from the quiz time, the growth phase of an organism before attaining sexual maturity is referred to. I mean, किसको बोलते हैं हम growth phase before attaining sexual maturity? There is growth in an organisms. तो उस growth phase को हम क्या juvenile phase बोलते हैं, क्या vegetative phase बोलते हैं, या फिर दोनों ही बोलते हैं, both A and B, या फिर कुछ भी नहीं बोलते, none of these. तो actually इसका सही आंसर is what? इसका सही आंसर है, this is option C. ठीक है, जुवनाइल फेज भी बोल सकते हैं एंड वेजिटेटिव फेज भी बोल सकते हैं. जुवनाइल फेज वी से इन एनिमल्स एंड वेजिटेटिव फेज वी से इन प्लांट्स. ठीक है, सो वी कैन रेफर दिस ग्रोथ फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बिफोर रीचिंग टू सेक्सुअल मैच्योरिटी, बोथ जुवनाइल एंड वेजिटेटिव फेज. सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी बोथ ए एंड बी. ठीक है, चलिए अभी चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे. दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप. Mention 2 inherent characteristics of amoeba and yeast that enables them to reproduce asexually. तो आपको बताना है ऐसी दो बातें जिसकी वजह से these organisms can reproduce asexually. तो देखो, हम बहुत अच्छे से जानते हैं that this amoeba and yeast both are, कैसे बोल सकते हैं? नंबर 1, दो बातें बतानी है आपको. तो नंबर 1, both are unicellular organisms. दोनों ही कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं? वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है, एक सेल से बने हैं. सो दैट इज व्हाई दे कैन अंडरगो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. नंबर 2, कैसे हम बोल सकते हैं भाई वन सेल के बने हैं, वन सेल इज केपेबल टू परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेसेस. दैट मीन्स दे हैव अ वेरी सिंपल बॉडी प्लान. सिंपल बॉडी प्लान. सो दीज टू थिंग्स ensures that these organisms can reproduce asexually. These are unicellular organisms and they have a very simple body plan. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Why do we refer offsprings formed by asexual method of reproduction as clones? मतलब जो organisms asexually reproduce करते हैं, क्यों हम उनके offsprings को clones बोलते हैं? Clones, as we know, is the exact copies of an organism, है ना? So why we call them as the exact copy of an organism? Because offspring formed, जो offsprings बन के आते हैं, offsprings formed are morphologically and genetically similar to their parents. Similar to their parents. Morphologically and genetically, because these offsprings are similar to their parents, hence these called as clones, which is reproduced by asexual means. चलिए, very simple question. आपकी किताब में बहुत अच्छे से explained है NCERT में. And these are the questions from NCERT Exemplar, जो कि आपके स्कूल टेस्ट में भी मैम आपसे पूछ सकते हैं. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 says, although potato tuber is an underground part, it is considered as a stem. भाई underground part तो हमको बोलते हैं that these are the roots modification, but still we call potato tuber is a stem. So why we call potato tuber as stem? We have to specify 2 reasons. You know, tuber has both nodes and internodes.
ट्यूबर के पास क्या होता है, नोड्स एंड इंटरनोड्स एज प्रेजेंट इन स्टेम, जैसे कि स्टेम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वन रीजन आप यू कैन राइट दिस दैट ट्यूबर हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स एज प्रेजेंट इन स्टेम. So this is one reason why that underground part is even called as stem. Number 2 is, leafy shoots arises from nodes. So these are the modifications of a stem actually. That is why we call that potato tuber which is underground as stem. चलिए आगे बढ़ते हैं. वेरी शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना हमको, बिल्कुल स्टिक टू द पॉइंट रहना है. तो शॉर्ट क्वेश्चंस है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है, अकॉर्डिंगली वी हैव टू आंसर. Question number 4 says, between an annual and a perennial plant, which one has a shorter juvenile phase? Give one reason. अब देखो क्विज टाइम में मैंने आपसे पूछा था, जुवेनाइल फेज मैंने बताई थी क्या होती है आपको, द ग्रोथ फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बिफोर इट रीचेस टू इट्स रिप्रोडक्टिव फेज, है ना. तो आपको ये बताना है कि एनुअल प्लांट और पेरेनियल प्लांट किसमें जुवेनाइल फेज इज शॉर्टर. अब एज वी ऑल नो दैट एनुअल प्लांट इज दोज प्लांट्स, वो प्लांट्स होते हैं विच एक्चुअली कंप्लीट्स देयर लाइफ साइकिल इन वन ग्रोइंग सीजन. एनुअल है तो एक साल में ही फिनिश करेंगे अपनी लाइफ साइकिल को इन वन ग्रोइंग सीजन, बट ऑब्वियस है जिसका लाइफ साइकिल जल्दी कंप्लीट हो जाएगा उसका जुवेनाइल फेज इज शॉर्टर. तो हम कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को, इसके आंसर को, दैट एनुअल प्लांट्स has to complete its life cycle in one growing season. Hence, have shorter juvenile phase. So simple one line answer है, very short type, you will write in this manner. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Okay, rearrange the following events of sexual reproduction in the sequence in which they occur in flowering plants. तो कुछ नहीं करना आपको, सीक्वेंस होते हैं ऑफ द स्टेप्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल, बट यहाँ पे आपको प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो प्लांट्स के केस में देयर इज वन वर्ड इज एडेड ओवर हियर विच इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन, जो कि एनिमल्स के केस में नहीं होता, क्योंकि प्लांट्स में मेल एंड फीमेल कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट इमीडिएटली, राइट. सो देयर इज अ प्रोसेस इन प्लांट्स दैट इज पॉलिनेशन. तो आपको सिंपल इस क्वेश्चन को ऐसे करना है कि आपको इन सीक्वेंस को, इन इवेंट्स को सीक्वेंस में अरेंज करना है. तो बट ऑब्वियस है सबसे पहले कौन सा स्टेप होगा, गैमीट्स बनेंगे. तो गैमीट्स के बनने को हम क्या बोलते हैं, गैमीटोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. ठीक है, गैमीट्स बना लिए हमने, है ना, हमारी पॉलन ग्रेन बन गई, मेल गैमेटोफाइट बन गया. प्लांट के केस में डेफिनेटली इट विल फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर और ऑफ द सेम फ्लावर एंड हेंस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस. सो गैमेटोजेनेसिस फॉलोड बाय पॉलिनेशन, है ना. पॉलिनेशन हो गया, pollen grain falls on the stigma, male gametophyte, which actually results into the formation of male gametes later. So male gamete fuses with the female gamete and fertilization takes place. ठीक है, fertilization बन गया, zygote बन गया. zygote is a single cell. Definitely zygote पे mitotic divisions चलेंगे, embryo बनेगा. That means embryogenesis takes place. ठीक है, so in this sequence the events are arranged in sexual reproduction in case of plants. चलिए आगे बढ़ते हैं. The probability of fruit set in a self-pollinated bisexual flower of a plant is far greater than the dioecious plant. Very simple, है ना. फ्रूट सेट की बात कर रहे हैं, मतलब फ्रूट फॉर्मेशन अश्योरेंस कहाँ पे होगी, इन अ सेल्फ पॉलिनेटेड बाइसेक्सुअल फ्लावर, है ना, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दी डाइशियस प्लांट. क्यों ज्यादा होगी भाई, हम बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रहे हैं. बाइसेक्सुअल फ्लावर के केस में क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर के केस में बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट in a flower,
एक फ्लावर की बात कर रहे हैं, बाइसेक्सुअल मीन्स कि दोनों ही चीजें एक ही फ्लावर के पास है, तो डेफिनेटली द pollen grain will fall on the stigma of the same flower and then the pollination takes place, fertilization takes place and fruit set is assured in case of bisexual flower. लेकिन dioecious plant की बात करें तो dioecious plant के केस में male and female sex organs are present on the male and female flower rather are present on the different plants. है ना, dioecious का मतलब होता है टू होम्स, दैट मीन्स मेल फ्लावर इज प्रेजेंट ऑन द मेल प्लांट एंड फीमेल फ्लावर इज प्रेजेंट ऑन द फीमेल प्लांट. सो दैट इज व्हाई the probability of fruit set is much greater in case of bisexual flower as compared to the dioecious plant, because dioecious means two homes and bisexual means one home. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Okay. Is the presence of large number of chromosomes in an organism a hindrance to sexual reproduction? Justify your answer by giving suitable reason. अब देखो आपसे पूछा है कि अगर organism में बहुत सारे number of chromosomes present हैं, तो that becomes a hindrance to sexual reproduction? No, not at all. आप इसको कैसे लिखेंगे? No, the presence of the large number of chromosome in an organism is not a hindrance to sexual reproduction. Example आपकी किताब NCERT में दिया हुआ है. There are 380 chromosomes present in 380 chromosomes present in butterfly. कितना सारा क्रोमोसोम प्रेजेंट है बटरफ्लाई में? स्टिल they can reproduce sexually. ठीक बात है? Still they can reproduce sexually. That means the large number of chromosome is not at all an hindrance to the sexual reproduction. चलिए आगे बढ़ते हैं. Yes, is there a relationship between the size of an organism and its lifespan? अब देखो lifespan का मतलब होता है birth to its natural death, है ना? From the birth to the natural death of an organism is the lifespan. तो क्या size matter करता है किसी भी organism का उसका lifespan? अब देखो actually it is not at all. No, there is no relationship between the size of an organism and its lifespan. Give two reasons. Give two examples आपको बताने हैं. तो examples आप कैसे कोड कर सकते हो? आपकी किताब में there is a diagram given of the crow and the parrot. तो अगर हम crow की बात करें तो सबसे पहले तो आप इसमें no डालोगे कि no, there is no relationship between the size of an organism and its lifespan. ठीक है, अब examples आपको पूछा है in support of your answer कि नहीं करता ऐसा. तो the size of crow and parrot are nearly similar, है ना? nearly similar होते हैं. Still crow का लाइफ स्पैन कितना होता है? 15 years. पैरट का लाइफ स्पैन कितना होता है? 140 years. तो साइज तो ऑलमोस्ट सेम है बट लाइफ स्पैन तो इज वास्ट डिफरेंस बिटवीन द टू. तो एक एग्जाम्पल आप ये कोड कर सकते हो. दिस इज वन एग्जाम्पल. दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल. आप मैंगो ट्री एंड पीपल ट्री का ले सकते हो. मैंगो ट्री हैज मच शॉर्टर लाइफ स्पैन देन पीपल ट्री. ठीक बात है. तो ये एग्जाम्पल्स हमें बताते हैं कि साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉट कोरिलेटेड विद द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. चलिए आगे बढ़ते हैं. In the figure given below, the plant bears two different types of flowers marked as A and B. Identify the types of flowers and state type of pollination and will occur in them. ठीक है, तो आपको बताना है कि पहले तो इसको आइडेंटिफाई करो किस टाइप के फ्लावर्स हैं. अब देखो पिक्चर से बिल्कुल क्लियर है. हमें क्या क्लियर है कि दीज आर ओपन फ्लावर्स. तो ए जो फ्लावर हो गया हमारा कैसा हो गया? दीज आर ओपन फ्लावर्स, है ना? तो ओपन फ्लावर्स कौन से होते हैं? Chasmogamous flowers, है ना? Actually both are bisexual flowers, A and B, but a bisexual flower which is open is chasmogamous flower. And आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में बिल्कुल क्लियर है. This B is actually cleistogamous flowers, right? तो cleistogamous flowers, as we can see, flowers are not open.
ठीक है, इस केस में फ्लावर्स आर ओपन। तो अब वेरी सिंपल, यू कैन कैलकुलेट योर सेल्फ कि किस टाइप का पॉलिनेशन होगा। अगर फ्लावर्स ओपन फ्लावर्स हैं, so what will it be preferred? It will be preferred that in उस केस में क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा हमारा? क्रॉस पॉलिनेशन। आपसे पूछा क्या है? आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। हमने टाइप आइडेंटिफाई कर लिए। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। बाइसेक्सुअल एक कंडीशन क्या है? कैस्मोगेमस। दूसरी कंडीशन क्या है? क्लाइस्टोगेमस। स्टेट द टाइप ऑफ पॉलिनेशन पूछा है आपसे, तो ओपन फ्लावर्स में डेफिनेटली क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन बिल्कुल हो सकता है। इसमें ऑटोगैमस भी हो सकते हैं, दे आर आई मीन जीनोगेमी भी हो सकती है, गाइटेनोगेमी भी हो सकती है ना। इस केस में क्योंकि फ्लावर्स आर नॉट ओपन, दे आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस फ्लावर, है ना। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है, सो इट विल प्रेफर ऑटोगैमस एंड इट इज कंप्लीटली सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, इस केस में आपका ऑटोगैमी भी हो सकती है क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इस केस में आपकी गाइटोनोगैमी भी हो सकती है, गाइटोनोगैमी भी हो सकती है एंड जीनोगैमी भी हो सकती है because the flowers are open flowers. The pollen from the other flower can land on the stigma of the flower. So that is why, because the flowers are open, chasmogamous flower, cross pollination any of the type, autogamy, self pollination भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। Give reasons to why cell division cannot be a type of reproduction in multicellular organism. देखो ना, सेल डिवीजन क्यों नहीं हो सकता मल्टीसेलुलर में? बिकॉज सेल डिवीजन मीन्स द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, and in multicellular organism, increase in the number of cells results in the growth of the body, not a means of reproduction. और हमसे यहाँ पे क्या पूछा है कि cell division cannot be a type of reproduction in multicellular organism. ठीक है, तो cell division का क्या मतलब होता है? सेल डिवीजन का मतलब होता है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स व्हेन द वन सेल डिवाइड्स इनटू टू, सो दैट रिजल्ट्स इनटू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, increase in number of cells, and that results into the growth of the body. किसकी बात कर रहे हैं हम? In multicellular organisms. सही बात है। तो भाई इससे उनकी क्या होगी? ग्रोथ होगी। दिस इज नॉट अ मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। In the figure given below, mark the ovule and the pericarp. So we know that ovule is actually forms the seed, है ना? So this becomes our ovule. Pericarp is the fruit wall. So this becomes our pericarp. Very simple. बिल्कुल no explanation needed. Straightforward question है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Let's see. Why do gametes produce in large number in organisms exhibit external fertilization? मतलब जो organism external fertilize करते हैं तो उनके अंदर large number of gametes क्यों बनते हैं, है ना? Because you know external fertilization कहाँ होता है? It is in water. The medium is water, right? And why they produce this large number of gametes? In order to enhance the chances of syngamy. In order to enhance the chances of syngamy, because it may possible that the fusion will not takes place between male and female gametes because they have undergone external fertilization. So basically इसका आंसर क्या बनेगा? In order to enhance the chances of syngamy. ठीक है, तो उनका लाइफ because they are also, I mean, because they undergo external fertilization, so it may possible that the fusion of male and female gamete is not possible, right? So that is why they release large number of gametes in order to enhance the chances of syngamy. चलिए आगे बढ़ते हैं। Let's see. हाँ जी,
Which of the following are monoecious and dioecious organisms? तो monoecious means one home जिसमें दोनों ही sex organs present है एक ही organism में, that is male and female. Dioecious मतलब either male or female, that means one home. तो earthworm की बात कर लेते हैं. अब क्लास 12th का चैप्टर लिया है हमने 1. तो अर्थवर्म आप सब जानते हो, आपका क्लास 11th में टॉपिक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. तो उसमें आपको अर्थवर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग बहुत अच्छे से डिस्कस किए हो, बहुत अच्छे से पढ़े हो सब, है ना. तो आप ही लोग अच्छे से जानते हो. बताओ मुझे इसका आंसर क्या बनेगा. अर्थवर्म इज व्हाट? अर्थवर्म इज मोनोशियस. व्हाई मोनोशियस? बिकॉज इट हैज बोथ sex organs in one home, in one organism. Both female sex organs, that is ovaries and testes, are present in one organism. खारा देख लेते हैं. Again, it is a plant which actually is monoecious. ठीक है, ये भी monoecious होता है. Again, female and male sex organs, zygonium and antheridium is present on the same plant. That is why it is monoecious. Mercantia. Mercantia, female thallus and male thallus. They are present separately. They have a separate body. They are present on two different plants, female and male thallus. So that is why it becomes dioecious. ठीक है. Cockroach, again उसी टॉपिक की बात करेंगे. क्लास 11th स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, कॉकरोच टॉपिक पढ़ा है. डेफिनेटली सेक्सेस आर सेपरेट, सो दीज आर ऑल्सो dioecious organism. इसमें एक चीज समझाती हूँ मैं आपको क्लास में, दैट क्लास 11th में, कि मेल कॉकरोचेस आर मच मोर स्टाइलिश देन द फीमेल्स कॉकरोच. क्यों? बिकॉज मेल्स के पास देयर इज वन मोर स्ट्रक्चर प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड एज एनल स्टाइल. सो दैट बिकम्स दैट मेल्स आर मोर स्टाइलिश देन दी फीमेल्स वन. ऐसे याद भी रहेगा आपको कि मेल्स में एनल स्टाइल प्रेजेंट होता है, विच इज द आइडेंटिफाइंग फीचर बिटवीन द मेल एंड फीमेल कॉकरोच. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Yes. Match the organisms given in column A with the vegetative propagules given in column B. तो सिंपल आपको कुछ प्लांट्स के नाम दिए हुए हैं और आपको बताना है कि उनमें asexually reproductive structures, vegetative propagules कौन कौन से हैं. जैसे Bryophyllum goes with leafy birds. तो इसमें leafy birds is actually from which the adventitious roots are there and then the plant can grow. Agave is from bulbils. ठीक है. Potato is from eyes. एंड देन वाटर हाइसिंथ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, नीट एग्जाम में भी पूछा हुआ है, आपकी स्कूल टेस्ट में भी आ सकता है. तो वाटर हाइसिंथ ऑफसेट्स. सो दीज आर द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लांट्स प्रेजेंट एंड दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली थ्रू दीज स्ट्रक्चर्स. लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर डेवलप into after fertilization. है ना, फ्लावर में ओवरी प्रेजेंट होती है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है. so once they get fertilized, so these parts is being developed into which structure? This you have to tell. तो ovary changes into fruit and ovules changes into seed. बहुत सिंपल सा है, बिल्कुल आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. देयर इज नो एक्सप्लेनेशन नीडेड. ओवरीज कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड वंस दे गेट फर्टिलाइज्ड. चलिए लास्ट क्वेश्चन. यस, क्विज टाइम. जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी क्वेश्चन दिया था, आपको चैट बॉक्स में इसका आंसर भेजना है. सेम गोज हियर. क्विज टाइम है. क्विज क्वेश्चन है आपका. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज फॉर्म्ड ओनली ऑफ द हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स. तो हर्माफ्रोडाइट अगेन दीज आर बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स जिसमें कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल. तो आपको वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर हर्माफ्रोडाइट्स ऑर्गेनिज्म. ठीक है, मैंने आपको हिंट बता दिया है. अब आपको इन 4 ऑप्शंस में से हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को चूज करना है. तो इस क्वेश्चन का आंसर अगेन आप चैट बॉक्स में भेजोगे एंड आई डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास. आई होप जितने भी हमने वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम टॉपिक 1 रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म से डिस्कस किए, तुम लोग को समझ आए होंगे कैसे आंसर करना है हमको. ठीक है, इसी तरीके से आंसर करोगे, यू विल गेट फुल मार्क्स. प्लस इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी हमने डिस्कस किए, इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं विच कुड बी देयर इन योर नीट एग्जाम. इस वीडियो में वील डिस्कस शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इन वन वीडियो. ठीक है, तो इसी तरीके से हर टॉपिक का आपको सीरीज कंटिन्यू रहेगा, हर टॉपिक का आपको मिलता रहेगा. ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप. आज का सेशन यही खत्म होता है. आई होप यू एंजॉयड एंड यू अंडरस्टैंड एज वेल. दैट्स ऑल फॉर